This program is sponsored by Zoom. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਵਨੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈਏ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੈਲਥ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਇਸ਼ੂ ਬਟ ਯੈਸ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਪੇਨਸ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਗੇਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੂਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਲ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਿਵਿੰਗ ਬੈਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਨਾ ਦੀ। ਐਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇੰਪਲੋਇਮੈंट ਦੇ ਉੱਤੇ जी। एना, यू आर वेरी वेलकम इन द स्टूडियो एंड शो और आप अपना टाइम निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ा सा आप हमें एना कुछ अपने बारे में बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक्चुअली एना कौन है। सो एना एक इमिग्रेंट है। हम एंड मेरे ख्याल से ये हम सभी की स्टोरी है कि हम सब इमिग्रेंट है। मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, मैं वहीं पे पली बड़ी हूँ। मैं एक ही शहर में मेरी सारी एजुकेशन, मेरे दोनों जॉब्स, मेरी शादी सब एक ही जगह पे हुई। और कुछ लाइफ के 28-29 ईयर्स अच्छे से कटने के बाद मैं हुआ चलो कहीं और चलते हैं। अरे वाह। और तब चल के हम लोग कनाडा आए। मैं बैक इन इंडिया में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी और बहुत खुश थी उससे, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ाती थी जो मेरा पैशन भी था। और फिर हमने जिस दिन डिसाइड किया हम यहाँ आने वाले हैं, हम आए 2017 में मैं कनाडा में लैंड की। तो इंटरेस्टिंग एक वाक्य आपको बताती हूँ कि कनाडा एयरपोर्ट पे, पियर्सन एयरपोर्ट पे लैंड करने पे मैंने बोला अरे ये तो सब इंडियंस ही हैं। मैं कोई गलत एयरपोर्ट पे तो नहीं उतर गई। तो ये एक मोमेंट हुआ था मेरे साथ। बट वहाँ से आने के बाद में इस बात की खुशी भी हुई कि बहुत ऐसे चेहरे थे जो जिनको जानती थी, पर मैं यहाँ पे पूरे शहर में अपने हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं जानती थी। तो मैं बहुत नई थी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और इसी दौरान 2017 मार्च एंडिंग में मैंने लैंड किया। अप्रैल में हमें पता चला कि भाई कोई कोर्स होता है सेंट गैब्रियल एडल्ट एजुकेशन सेंटर में, तो वो कोर्स में मुझे भेज दिया गया। मैं रोज़ बस लेती थी और मुझे याद है कि बस में बैठते ही मैं इतना खुश हो गई कि अरे एक ही बस में मैं पहुंच जाऊंगी। और अच्छा लंबा रूट होता था 1 घंटे का, तो मैं बड़ी खुशी सोचती थी चलो नींद बस में ही पूरी कर लूंगी। तो उस तरीके से जर्नी शुरू हुई। बहुत मज़ा आया पढ़ने में, बहुत मज़ा आया सीखने में। बट जैसे दिन गए फिर वो भी लगने लगा कि अरे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जॉब तो नहीं है, जॉब का क्या होगा। फॉर्चुनेटली उसी प्रोग्राम के थ्रू एक इंटर्नशिप मिली, जहाँ पे मुझे मेरे मेंटर, यहाँ पे जो मेरे मेंटर बने वो मुझे मिले। एंड इतनी अच्छी लेडी हैं वो, इतनी मोटिवेशनल लेडी हैं वो। उन्होंने मुझे बाद में उसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने में भी बहुत हेल्प की।
और वहीं से मेरी जो हिस्ट्री है इन कनाडा, बहुत पुरानी नहीं है बट मेरी हिस्ट्री इन कनाडा शुरू हुई है। मेरा फर्स्ट जॉब इन कनाडा वाज करियर कोच, और उसके बाद में एक और जॉब चेंज हुआ, और उसके बाद में फिर अब मैं फुल टाइम करियर कोचिंग करती हूँ। वाओ, हाँ जी। एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे आपने कहा बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, या जो आपने जो भी जितनी बातें की ना, ऐसे लगता है जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे अंदर से कोई ऑलरेडी मेरे बारे में जानता है और वो बोल रहा है, क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जब हम बाहर की कंट्री में जाने का सोचते हैं, इंडिया में बैठे हुए या कहीं भी हमारा बैक होम है वहाँ बैठे हुए, तो हमें लगता है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। इट्स लाइक ऑफ कोर्स जन्नत है कनाडा। आज अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे लगता है कि आई एम प्राउड कैनेडियन एंड ऑफ कोर्स इंडियन, बट उस टाइम पे जब हम एयरपोर्ट पे उतरते तो हमें लगता है अरे लगता है अपने शहर में आ गए कहीं। सही बात है, ये अपने जैसे लोग दिख रहे हैं, राइट। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि एक अपने आप को एनरोल करना, दोबारा से एजुकेशन करना, लेना या अपग्रेड करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड खासकर जैसे आप जिस प्रोफेशन से आई, प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी कोई स्मॉल डेजिग्नेशन नहीं होता। इवन टीचर होना भी इंडिया में आज की डेट में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी आई थिंक जनसंख्या है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत टफ है। तो नो, हैट्स ऑफ टू यू। हम इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि आप बिल्कुल सेम प्रोफेशन में हैं, करियर कोच टू द न्यू immigrants, और you help all professionals। तो थोड़ा आप अपने काम के बारे में बताएं, अपनी डेजिग्नेशन एंड कंपनी के बारे में। जी, मेरा डेजिग्नेशन है करियर कोच, एम्प्लॉयमेंट काउंसलर, एम्प्लॉयमेंट कोऑर्डिनेटर, बड़े अलग अलग डेजिग्नेशंस है, इमिग्रेंट फैसिलिटेटर। बट मैं काम करती हूँ मॉल्टन नेबरहुड सर्विसेज में। हमारी जो एजेंसी है, हमारी हेड ऑफिस मॉल्टन में ही है, और जो हमारा सब ऑफिस है वो ब्रैम्पटन में है। एंड हमारी एजेंसी 0 to 99 ईयर्स के सारे एज ग्रुप्स को सर्व करती है। वाओ। जिसमें मेरा जो काम है वो खास करके वेरी वेरी फोकस्ड इमिग्रेंट विमेन के लिए है। और ये पोजीशन अलग से क्यों है, इसका खास रीजन ये है क्योंकि जब विमेन, हम जब इमिग्रेट करके आते हैं, हम एक बहुत ट्रेडिशनल कल्चर से, मोस्ट ऑफ अस, मैं हर किसी की तो नहीं बात कर सकती हूँ, बट ज्यादातर हम लोग एक बहुत ट्रेडिशनल कल्चर से आकर एक बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड कल्चर में काम करने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। विमेन चाहे कहीं की भी क्यों ना हो, हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज आती है कि हमें फैमिली का ख्याल रखना है। इस वजह से मैंने बहुत बार देखा है जो विमेन है, उनको अपना खुद का करियर आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं फैमिली देखूं, मैं करियर देखूं, मैं पढ़ाई देखूं, मैं ट्रैवल देखूं, मैं करूं तो क्या करूं। वो सारा जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से आंसर कर सकते हैं, या उसमें किस तरीके का एक डिस्कशन जनरेट कर सकते हैं, इस करके ये अलग से पोजीशन है। बट हम मेन वेमेन दोनों को सर्व करते हैं, ऐसा नहीं है। जो मेरी जो टेक्निक रही है, या जो हम हम लोग एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, वो ये है कि आप मुझे बताओ आप कहाँ जाना चाहते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत बार प्रोफेशनल्स आते हैं, लाइक मैं आपको आज ही का एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई जिन्होंने बोला कि मैंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी किया हुआ है। वाओ। बट वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे। आई हेयर यू, है ना। तो बट उसके बाद में मेरा पैशन था, मुझे लॉ पढ़ना था, मैं लॉ पढ़ के यहाँ आई हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं करना है, मुझे लॉ प्रैक्टिस करनी है, मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पर। तो उनकी ना एक्सपीरियंस ना तालीम उतनी ज्यादा है लॉ में, एंड अब लेकिन मैं जानती हूँ उनका गोल क्या है। सो उनको उसी तरीके से स्टेप्स डिवाइड करके कि आप ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहें तो सारे ऑप्शंस एक साथ शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो एक के बाद एक कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो ये एक कहानी रहती है। कभी आते हैं, जब लोग आते हैं बहुत प्रोफेशनल, बहुत एजुकेटेड, कभी कभी हमें भी बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं इतने वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स आके यहाँ पे बोलते हैं कि पता नहीं काम कैसे ढूंढे। सो वर्कशॉप्स करना कि भाई आप कनाडा के जॉब मार्केट को समझिए, आप कनाडा के वर्क कल्चर को समझिए। और ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं जो भी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी, आपको वर्क कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कैनेडियन वर्क कल्चर है ये ऐसा वर्क कल्चर है कि अगर आप इसे समझ ले तो स्काई इज़ द लिमिट। मतलब आपके पास कोई
आप जितना चाहें उतना ऊपर उड़ सकते हैं और उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। तो ये वर्क कल्चर समझना, एजुकेशन, डेजिग्नेशंस, लाइसेंसेस समझना, ये सारे प्रोसेसेस कवर करते हैं। एक्चुअली जहाँ तक मैं आपकी बात अपने दर्शकों को भी समझाना चाहूँगी एक सिंपल भाषा के अंदर, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਕਲਚਰ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੈਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 26% ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ 26% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਰ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ 24 to 54, ਜਿਹੜੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 54 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਦਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ मैं ऐना जी ने पूछना चाहूँगी कि ऐना, जब कोई मान लीजिए जैसे आपने कहा प्रोफेशनल आता है इंडिया से, मान लीजिए कोई इंजीनियर आया है, राइट, तो क्या ऐसा भी देखा है आपने कि वो वहाँ से आके यहाँ पे किसी वेयर हाउस में या किसी फैक्ट्री में या ऐसे जॉब्स कर रहे हैं? जरूर, मैंने मेरे घर में ही देखा है। ये कहीं बाहर जाने की तो जरूरत नहीं है, ये हमारे सबके घर की कहानी है कि एज प्रोफेशनल्स हम लोग बहुत पढ़ाई, बहुत तालीम लेके आते हैं, बट इनिशियली सर्वाइव करने के लिए हमें ऑड जॉब्स करने पड़ते हैं, सर्वाइवल जॉब्स करने पड़ते हैं। और वो कोई गलत बात नहीं है, बट क्या आप वो टाइम जहां आप अपने सर्वाइवल जॉब्स कर रहे हैं, क्या आप वो टाइम सिर्फ इसी में यूज कर रहे हैं कि चलो मैं जॉब करूं, खत्म करूं, घर आऊं और खुश रहूं? वेरी वेल सेड। या आप इसमें यूज कर रहे हैं कि चलो इसके साथ साथ मैं जरा थोड़ी नेटवर्किंग करूं प्रोफेशनली, ठीक है, या मैं कोई ऑनलाइन कोर्स कर लूं, ठीक है, या मैं देखूं कि इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज करूं। इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज यानी कि मैं देखूं कि अगर कोई प्रोफेशनल है इंडस्ट्री में, उनसे मैं उनका कुछ वक्त मांग के समझूं कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि मैं अपने आप को प्रोफेशनली री एस्टैब्लिश कर सकूं, या मैं लर्न करूं कल्चर यहाँ का, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे आके हमें कई टर्म्स जो हैं वो भी डिफरेंट यूज करनी पड़ती है। बिल्कुल, टर्म्स यूज करनी पड़ती है डिफरेंट, और ना सिर्फ टर्म्स, आपके बात करने का तरीका भी। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि मुझे आपसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, इंडिया में अगर होंगे तो मैं आपको ईमेल करूंगी, प्लीज सेंड मी XYZ डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप नहीं लिख सकते हैं, आप लिखेंगे डियर नवनीत, could you please email me this document? Will be highly appreciated. That is also okay, वो भी आप लिखते हैं, बट आपसे जो मुझे चाहिए वो भी मुझे आपको सवाल की तरह देना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। मैं पहले सिचुएशन में भी प्लीज बहुत कर्टियसली बोल रही थी, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, आप एक क्वेश्चन फॉर्मेट में वही चीज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी, रिक्वेस्ट, या एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल हो जाता है, बट क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है, एकदम से लोग परेशान होते हैं, अरे मैंने तो अच्छे से ही बात की, इनको क्यों बुरा लग गया? इसलिए बुरा लगा है क्योंकि आपने यहाँ का लैंग्वेज कल्चर, यहाँ का कम्युनिकेशन कल्चर समझा नहीं है। इसमें सही गलत की बात नहीं है, इसमें इस बात की बात है कि अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे पंजाबी में बात करूँ, तो यहाँ कम्युनिकेशन डिफरेंस हो जाता है। ये वही बात, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। हाँ जी, मैनी थिंग्स। जैसे आपने बात की कि हाँ, जो लोग, कईयों को तो जॉब मिल जाती है ना, बट आते कई बार हमें जॉब नहीं मिलती। जो लोग जॉब सर्च करते रहते हैं घर बैठे बैठे, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि ऐसे लोगों को, क्योंकि आप इस फील्ड के अंदर अब हैं और आप इस चीज़ से गुजर चुकी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि वो
उनको जॉब मिले और वो थोड़ा घर से बाहर निकले, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए? सबसे पहले तो घर से बाहर निकलिए। एग्जैक्टली। अगर आपको जॉब अप्लाई करना है, आपकी जो करीब की लाइब्रेरी हो, आप वहां जाइए, वहां के कंप्यूटर से जॉब अप्लाई करें। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, वहां के कंप्यूटर से जॉब अप्लाई करें? हाँ, क्योंकि आप अगर लाइब्रेरी जाएंगे, बहुत लोगों को पता नहीं है कि हमारी लाइब्रेरी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, जॉब सर्च रिसोर्सेज, डायरेक्टरीज। बहुत, या वेरी ट्रू। आपने कंपनीज के नाम नहीं सुने होंगे, इतने सारे डायरेक्टरीज अवेलेबल है, राइट? नो, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि गल वही है जी कि जद असी एज अ न्यू इमिग्रेंट आने आ, या ईवन असी गल न्यू इमिग्रेंट की भी नहीं कर रहे, असी गल कर रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, क्या उन्होंने भी कोई चेंज चाहिए? क्योंकि जिस तरह असी आने नवे नवे किसी भी जॉब च लग जाने, क्या वो इनफ हैगा? इस बारे भी असी गल करांगे। बाकी हर चीज़ वास्ते अपने घरों बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ वास्ते अपना नैटवर्क इत्थे बनाना और सीखना ज़्यादा कल्चर नू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असी साडी इत्थे जंपल नहीं हुई ते एक नवा बर्थ मैनू लगता है कि इत्थे आके सानू दूजी कंट्री च आके जिहड़ा साडा हुंदा है और असी बच्चों वकन दोबारा हर चीज़ नू सीखते हैगे आ। नो, वेरी वेल सेड एक्चुअली, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग आते हैं, हमें एक जगह जॉब मिल गई, राइट, और हमें लगता है अब घर का थोड़ा खर्चा चल पड़ा है क्योंकि दोनों लोग वैसे ही जॉब करके काम कर रहे हैं, हम बड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम लोग एक अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, राइट? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं इस चीज से बहुत सहमत हूँ और इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ बोलूंगी, कल्चर समझाने के लिए। मेरे डैडी जब वो इंडिया में काम करना शुरू किया था, उन्होंने जिस कंपनी में शुरू किया, उन्होंने उसी कंपनी से रिटायरमेंट ली। एक्चुअली ऐसे ही होता है ज्यादातर, राइट? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया में सिंगल कंपनी कल्चर है, लेकिन मैं ये कहना मांग रही हूँ कि हम जब हमारे ट्रेडिशनल या हमारे साउथ एशियन कल्चर से आते हैं, तो हमारी लाइफ कुछ इस तरह से होती है, आप नर्सरी से शुरू करते हैं और MBA करके रुकते हैं। yes. मतलब मास्टर से पहले तो कोई रुकता नहीं है, ज्यादातर नहीं रुकते हैं, है ना? इतना आप करते हैं, उसके बाद में आपकी कैंपस सिलेक्शन हो जाती है, आप जॉब करने लगते हैं, आप मैनेजर लेवल पे शुरू हो जाते हैं। कनाडा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अगर आप बिना एक्सपीरियंस के मास्टर्स कर लो, आपको ओवर क्वालिफाइड माना जाता है, राइट? और इसका भी रीजन है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप किसी भी टीम को अगर मैनेज करना चाहते हो, आप पहले उस टीम का मेंबर बनो। एग्जैक्टली। सो आप उस टीम में वर्क करो, उस टीम में आप प्रोग्रेस करो, उस टीम में प्रोग्रेस करने के 10, 15, 20 साल के बाद आप MBA करो। सडनली आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को मिला के आपका जो वेट है एज अ प्रोफेशनल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वाओ, ओह, इट्स वेरी गुड टू नो एक्चुअली। बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि ये तो शायद मुझे भी नहीं पता आफ्टर 16 ईयर्स की ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा पढ़ाई करते जाएं, वर्किंग एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मैं ये किसी को ये नहीं कहना चाहती हूँ कि आपकी एजुकेशन बेकार है, बट कनाडा में आपका एक्सपीरियंस हमेशा आपके एजुकेशन से ज़्यादा वेट लेगा, हमेशा। जैसे यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद बच्चों को कोऑप करना बड़ा ज़रूरी होता है। इवन पढ़ाई करते करते 4 महीने जॉब करनी ज़रूरी होती है, या इवन हाई स्कूल के अंदर बच्चों को 40 घंटे का वॉलंटियर वो जो रिकॉर्ड है वो पूरा करना पड़ता है, तभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो एक्चुअली सिस्टम बहुत ही सलीके से बनाया गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप ये नहीं कि घर बैठे बैठे थियोरेटिकल नॉलेज ही लेते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जाएं वहाँ पे जहाँ पे आपने शायद कल काम करना है, आपको पता चले कि माँ बाप के अलावा भी कहीं और से आपको ड्यूटीज जो है मिल सकती हैं, या आपको सुनना पड़ सकता है। यू नो, वेरी नाइस। तो क्या ऐसी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप आई यहाँ पे तो आपको शायद हर एक को लगता है कि यार मैं कभी अगर टाइम मिला मुझे ऐसा या रिसोर्सेज मिले तो मैं ये एक ऐसी चीज़ ज़रूर चेंज करूँगी इमिग्रेंट्स के लिए। क्या कोई एक ऐसी चीज़ थी आपकी लाइफ में? मैं एक ही चीज़ मेरे जो जहन में आ रही है वो ये है कि जब मैं यहाँ आई, मुझे बहुत कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ लोगों से सुनने में मिले। कोई कनाडा के तारीफ़ों के पुल बांधने से नहीं थकता था, उसी तरफ
कोई कनाडा की बुराई करने से नहीं थकता था। Exactly. जॉब मार्केट की, कनाडा बिल्कुल। नॉट एज अ कंट्री बट Job कैनेडियन market. जॉब मार्केट की मैं बात कर रही हूँ। और मैं बड़ा परेशान होती थी कि मैं सुनूं किसकी तो सुनूं सुनूं? किसका और मानूं तो मानूं किसका। तो मेरा एक सिंपल कहना है, आप यहाँ पे आए हैं सक्सेसफुल होने के लिए या अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए। Exactly. बट कोई भी हो, आप यहाँ खुश रहने या ज्यादा खुशी ढूंढने आए हैं। मैं ये कहूँगी आपकी एनवायरनमेंट में फिर वैसे लोग रखें जो आपको पॉजिटिव पिक्चर दिखाए, ना कि नेगेटिव पिक्चर दिखाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेगेटिव नहीं है, बट पॉजिटिव पिक्चर दिखाने वाले लोग अगर आसपास में होते हैं तो आपको भी हिम्मत बनी रहती है उन मुश्किल घड़ियों में, जब आपको लगता है कि अरे क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया यहाँ आकर। सो मैं ये कहूँगी आपका एनवायरनमेंट हेल्दी रखिए, आपके आसपास में जो लोग हैं वो वैसे रखिए जैसा आप इस देश को देखना चाहते हो, जैसा आप इस देश में रहना चाहते हो। बिल्कुल सही बोला आपने, और ये बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी जनरल लाइफ के अंदर हमें पॉजिटिविटी रखनी ज़रूरी है। मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन हमने अपने आप से पूछना है बिल्कुल कि क्या हम इस कंट्री में रहना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक है, हम आ गए हैं, लैंड हो गए हैं, पीआर पेपर्स मिल गए हैं, सब कुछ हो गया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब क्वेश्चन पहले 6 महीने 1 साल रहता है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वहाँ गाड़ी थी यहाँ गाड़ी नहीं है, घर था यहाँ घर नहीं है, वहाँ मेड्स थी यहाँ मेड्स नहीं है, लाइक XYZ हाँ मेनी जी। क्वेश्चंस, कल्चरल शॉक होता है। बट क्या मैं यहाँ रहना चाहती हूँ? अगर मैं रहना चाहती हूँ तो मैं तो फिर पॉजिटिव लोगों की बातें सुनूंगी, सही बात और है। पॉजिटिव ही कहूंगी। और अगर मैं नहीं रहना चाहती तो फिर मैं भी उन नेगेटिव लोगों के झुंड में इकट्ठे खड़े हो जाऊंगी जहां पे लोग नेगेटिविटीज बोल रहे हैं। और बात यही है, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे और नेगेटिव सुनेंगे तो लाइफ आप ही की तकलीफ वाली होने वाली है। और किसी जो लोग पॉजिटिव है वो तो बड़े ही खुश हैं, चाहे उनके पास गाड़ी हो ना हो, बिल्कुल, राइट। yeah, so they are actually kind of learning, they are every day they are meeting their ends, you know, अपना जो उनका गोल है वो हर शाम को आके आराम से सोते हैं कि आज हमने ये कर लिया, राइट। और मुझे लगता है कुछ साल, जैसे मैं खुद यहाँ पे अगर 16 साल से अपने काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग करूँ तो हर साल आपको लगता है वाओ न्यू अचीवमेंट। तो मुझे लग रहा है मैं कनाडा में तो अभी 16 साल की ही हुई हूँ सिर्फ, because that's my new birth here. सही बात है, right? बिल्कुल I सही बात have है। I have learned everything right from the scratch जो मैंने इंडिया में सीखा था। चीजें वही है, बेस वही है, बट थोड़ा सा आई थिंक वो कहते हैं ना कॉस्मेटिक डिफरेंट है। और ये एक मैसेज मैं खास करके उन प्रोफेशनल्स के लिए देना चाहूँगी जो ये मानते हैं कि अरे हमारी डेजिग्नेशन या हमारी एक्सपीरियंस या हमारी एजुकेशन का यहाँ वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, आप एक बार एंटर हो जाएं, उसके बाद में आप इतना बढ़िया एक्सपीरियंस लेके आए हैं, वो एक्सपीरियंस ही आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी पुश करेगा। वेरी नाइस। बट वो एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करना बहुत जरूरी है। हम ये बात वापस करते हैं आके, है ना, हमारा ब्रेक का वक्त हो चला है, मगर ये इस पॉइंट को हम जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो प्रोफेशनल्स आते हैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਹਾਂ। This program is sponsored by Zoom.